Welcome back after a long break. In fact, you had a good break. We are now moving towards the next chapter, and the name of the chapter is Federalism. And जो ये Federalism chapter है, the base we have already done in class 10. हम class 10 में Federalism कर चुके हैं. लेकिन yes, of course, as per our 11th standard, we would be having an elaboration, we would be having more detailed things जो कि हमारे 10th में नहीं था. कुछ चीजें तो थी लेकिन कुछ चीजें हमारे नहीं था. So we would be going for federalism. Now, when it comes to the word federalism, to start off with, हम 9th स्टैंडर्ड में, लेट अस गो 2 years बैक, मतलब कि पीछे जाते हैं बैक. तो इन 9th स्टैंडर्ड वी हैड स्टडीड all the decisions which are taken by the government. They are actually divided. और हम इनको डिवाइड करते हैं either into the organs or into the levels. यानी कि कौन उसको डिफाइन करता है, कौन उसको पूरा करेगा. दे आर द ऑर्गन्स विच वी कॉल एज लेजिस्लेटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी. एंड व्हेन इट कम्स कि किस लेवल पर कितना करना है, how much or what should be taken by which level, that comes under legislative, so that comes under federalism. There are many countries jahan aapka you don't have the word what we call as federalism. They may be having unitary government. Unitary matlab पूरे देश के लिए एक यूनिट, पूरा देश जो है वो एक ही यूनिट. तो ऐसा कब हो सकता है? when that मतलब कि such unitary government is possible. First, when the area, in terms of area, the country is small, or if there is no basic religious regional diversity. अगर आपके डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग मतलब कि रिलीजन नहीं फॉलो करते हैं, कल्चर नहीं फॉलो करते, then it is easy. Let us take the example of Yugoslavia. अगर हम यूगोस्लेविया का एग्जाम्पल लेते हैं, which was divided into 6 different countries. This is because of the regional diversities. This chapter particularly was omitted in your class 9 10th. ये वाला जो पर्टिकुलर मतलब की जो कंसेप्ट था वो ओमिट था. लेकिन अगर हम देखते हैं तो यूगोस्लाविया जो है, दे हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब कि रिलीजन सेम था लेकिन लोगों का जो कल्चर या बिलीफ थे वो अलग थे, विच लेड टू डिफरेंस, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, एंड अल्टीमेटली द कंट्री हैड टू बी डिवाइडेड इनटू सी. चेकोस्लोवाकिया, चेक एंड स्लोवाकिया, आज की डे पर वी हैव टू डिफरेंट कंट्रीज, चेक एंड स्लोवाकिया सेम. Ireland, Ireland once was an independent part. अगर आप मैप में देखते हो, वर्ल्ड मैप में देखते हो, तो यू विल सी कि जो ये आपका आयरलैंड है, इट इज बिट फार अवे फ्रॉम ब्रिटेन, यूके. वहां प्रॉब्लम क्या थी कि देयर वर टू काइंड्स ऑफ रिलीजन, मतलब कि एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वहां पर था. वन, जो प्रोटेस्टेंट्स थे, those who were Protestants, they were rich, they were broad minded and modern, whereas आपके जो कैथोलिक्स हैं, जो पुराने रिजिम को फॉलो करते हैं, those who follow the old regime, वो जो थे they were poor and moreover they were orthodox. अब प्रॉब्लम क्या थी? इन दोनों के बीच में झगड़े चलते थे. सेकेंडली, जो प्रोटेस्टेंट्स थे, दे वांटेड कि कंट्री शुड बी यूनाइटेड विथ ब्रिटेन.
क्यों? क्योंकि ब्रिटेन वॉज अ मॉडल ऑफ मॉडर्निटी, इट वॉज अ मॉडल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो वो चाहते थे दैट द कंट्री मस्ट बी यूनाइटेड विथ यूके. Whereas जो कैथोलिक्स थे, they wanted that the country should be democratic republic. अब यहाँ पर क्या हुआ? Because the government could not accommodate these मतलब की differences, और इसकी वजह से क्या हुआ? Even though people protested, but ultimately Ireland is part of UK by the Act of Union 1707. तो ये जो इतने एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, लाइक आयरलैंड और आपको चेकोस्लोवाकिया, दीज टेल्स कि इफ द डाइवर्सिटीज, किसी भी कंट्री में जो डाइवर्सिटीज है, अगर उनको हम लोग एड्रेस नहीं कर पाते हैं, then it may lead to further divisions. In India, now let us come to the Indian power. When we were, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, the same thing, when we were independent, मतलब when we attained independence 1947, that was a time when India was divided into provinces and princely states. And सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो डिमार्केशन था, that was not clear. Like if you go to the areas of Punjab, Sindh, अगर हरियाणा, ये सारा आपका एक था. And some of the specific areas were dominated by the Muslims, others were dominated by Sikh, some of them were dominated by the Hindus. So they were not a clear cut demarcation, and the languages were spoken different. डाउन द लेन इफ यू कम, अगर आप डाउन मतलब नीचे मैप में जाते हो, तो वहां पर इफ यू सी, आज के डेट पर हम मद्रास जो है दैट वी कॉल एज तमिलनाडु, लेकिन उस वक्त में मद्रास का मतलब था आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के पार्ट्स, तमिलनाडु के पार्ट्स, एंड इवन पार्ट्स ऑफ केरला. और इसकी वजह से क्या होता था, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते थे, बट डेफिनेटली द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वर देयर. और जब हम आजाद हुए, व्हेन वी गॉट द फ्रीडम, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक एरिया के अंदर चार अलग तरीके के लोग रहते हैं. अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो, इफ यू फ्रेम एनी पॉलिसी and it is supporting one particular section and the another is feeling alienated, तो फिर लड़ाई चलती थी, which already you know it is there in Sri Lanka. और इस वजह से हमारा जो मतलब कि there were many problems at that moment. बेसिकली जो हमारा सबसे पहला था, वो था आपका बॉम्बे प्रोविंस. बॉम्बे प्रोविंस जो है दैट टेल्स आपका गुजरात, विदर्भ करके है, मतलब अभी भी वो प्रॉब्लम्स अभी भी चलती हैं. विदर्भ, गुजरात, करंट महाराष्ट्र, एंड इवन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. इफ यू हैव एनीवन हैज विजिटेड महाराष्ट्र, तो अगर आप महाराष्ट्र की इंट्रिकेट एरियाज में जाओगे ना, तो आप देखोगे महाराष्ट्रियंस एंड कन्नडिगस जो है ना, वो सिमिलर लगते हैं in terms of food, in terms of culture and all. And this was the reason, क्योंकि वो एरिया आपका बॉम्बे प्रोविंस था. नाउ द चैलेंज वाज कि ऐसे में जहां एक जगह पर आपके मतलब कि देयर आर पीपल हु आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन, रीजन, कैसे किया जाए. एंड that was when there was a movement in आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं विशाल आंध्र मूवमेंट. विशाल आंध्र मूवमेंट. एंड इस मूवमेंट में जो जिस इंसान ने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, आई थिंक पोट्टी सीताराम राजू, ऐसा कुछ नाम था, सीताराम राजू, ही वेंट इनटू फास्ट अनटू डेथ. एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई.
अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो देयर वाज वायलेंस, देयर वाज अ fierce fight between the Tamilians and the Andhras. And उस वक्त में even though there was no policy, वह तब उस वक्त कोई पॉलिसी नहीं थी बेटा, फिर भी 1953 में सबसे पहले जो है आंध्रा को अलग किया गया और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सेट किया गया ये देखने के लिए टू स्टडी इफ द states are divided on the basis of their region, religion, culture, language, तो क्या वो आसान होगा? And that happened. 1956 में हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, विच सेड कि अगर हम अपने पावर्स को, जो यूनियन गवर्नमेंट का पावर है, उसको छोटे छोटे स्टेट्स बना के एज पर द लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, इफ वी आर स्टेटिंग दैट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी इट वाज गिवन दैट देयर शुड बी 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, लेकिन स्टेट का प्रॉपर उस वक्त डेफिनेशन नहीं था, हाउ मेनी स्टेट्स, क्या होना चाहिए, एंड दिस वाज हाउ फर्स्ट 14 स्टेट्स वर फॉर्म्ड। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी द प्रोविजंस वर दिया हुआ है that at which area union is going to make the law, on which area state should make the law, उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहेगा, and if there is any conflict between state and center, तो where there would be, मतलब कि what judiciary will do, everything was clearly mentioned, तो हमारे लिए आसान हुआ। And that is the main spirit of federalism, which says, जो मेन स्पिरिट है वो यही है कि आपकी जो कंट्री होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स। हमारे यहाँ हम उन यूनिट्स को स्टेट्स बोलते हैं, इन सम अदर एरियाज इट इज कॉल्ड एज डचेस, कैंटॉन्स, अलग अलग जगहों पर उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। और इन स्टेट्स के जो, मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड, यूनियन गवर्नमेंट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री, और वो उन एरियाज को डील करता है which is important for the integrity, safety of the country. Whereas जो आपके states होते हैं they are responsible for their respective areas, and then union makes certain rules which is, यानी कि citizen एक है लेकिन उनको रूल करने वाले 2 या 3 है, because the 73rd and 74th amendment had also inserted local government. तो अगर हम एक गांव में रहते हैं तो पंचायत भी हमारा गवर्नमेंट है, जिस स्टेट में हम रहते हैं वो भी हमारा गवर्नमेंट है, एंड ऑफ कोर्स वी आर इन इंडिया, तो इंडिया मतलब इंडिया का जो यूनियन लॉ है वो भी। तो दैट इज द व्हाट यू कॉल एज स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जिसकी वजह से to some extent conflicts have been avoided, and of course there is a smooth running. जो मैंने आपको एक पूरी कहानी सुनाई which is there in your 12th standard of course, और कुछ आपका 10th का है, तो आपको मैंने बताया that in Andhra there was a movement. तो ऐसे conflicts होने से the government would not be able to govern in the right sense. अब स्टेट्स को पता है व्हाट इज, अगर जैसे आंध्र प्रदेश हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू एपी एंड तेलंगाना, क्यों? बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस, एंड दैट हैज एंश्योर्ड कि जो स्टेट्स है वो अपने एरियाज में, नाउ राजस्थान का जो स्टेट है वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने बिलीफ को फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंग बनाता है, and they have to coordinate with the developmental projects of union. That is the spirit of what we call as federalism.
एंड डेफिनेटली जहां जहां पर भी फेडरल गवर्नमेंट रहा है या मतलब की है, they have ensured a smooth transition, and of course it also avoids many conflicts. ऐसा नहीं होता है कि बच्चा कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत स्मूथ है, ओके ओके हम आपके हैं कौन या हम साथ साथ हैं जैसे गुड 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 नहीं हो सकता. There are certain problems between the center and state relationships. There have been conflicts of transfer of subjects. There have been conflicts over किस सब्जेक्ट पे कौन बनाएगा. कई बार स्टेट कहती है कि ये हमसे ज्यादा रिलेटेड है तो हमें बनाना है, but judiciary, effective judiciary has helped in that way. So now I'm starting the chapter along with the notes, but now I'll be starting first. I will be doing it with notes, and then we would also move along with the NCERT as we were doing long back. You can see the very first what we are मतलब की reading is all about Russia. After First World War, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच केम. देन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो द कंट्रीज वर वेरी स्केयर्ड. द रीजन, नाउ दे वर ऑलवेज इन अ ट्रबल कि भाई हमें आकर कोई बड़ी जो कंट्री है वो आकर हमको जो है दे वुड बी मतलब कि इन्वेडिंग अस. एंड इसीलिए some of the countries wanted कि they should be under a bigger country, and this was well established with the Warsaw and NATO pact. जब आपका वर्ल्ड जो है बाइपोलर हो गया. बाइपोलर का मतलब क्या होता है क्लास 11, टू पोल्स, यानी कि वन सम ऑफ द कंट्रीज जो हैं दे सपोर्टेड कैपिटलिज्म, जिन्होंने आपके कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया, एंड दे वर विथ यूएसए एंड दे साइन द एग्रीमेंट कॉल्ड नाटो सेंटो, ऐसे कई मतलब की थे. एंड दोज हु सपोर्टेड सोशलिज्म, उन्होंने जो है यूएसएसआर को सपोर्ट किया. बट उस वक्त में यूएसएसआर पहले यूएसएसआर नहीं था. उस वक्त उसका नाम यूएसएसआर चेंज हुआ था फ्रॉम रशिया सोवियत यूनियन टू इट बिकेम यूएसएसआर because it was now the union of many Soviet republics, those who were supporting them. और इन सबको जो है they were all supported by the Warsaw Pact. Warsaw is in Poland, तो उसके पैक्ट के अंदर इनको किया गया. लेकिन अगर आप आज भी देखोगे तो जिन कंट्रीज ने नाटो को सपोर्ट किया था दे ऑल आर अभी भी जो है दे आर देयर. लेकिन यूएसएसआर जो है नाउ इट इज नॉट यूएसएसआर, इट हैज नाउ डिसइंटीग्रेटेड टू रशिया. क्यों क्यों ऐसा हुआ? Similarly, if you go to Canada, I have heard it. Some of my known to people tell me that if you go to say Canada, this is not the map, but I'm just telling you, and you got job, आपको job मिल गई, and you got job in this area, and another one got job in this area. Now, what is the problem is that these are the regions speaking. तो अगर मान लो आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू कनाडा एंड द एरिया इज इंग्लिश डोमिनेटेड, तो आपको पहले चेक करना पड़ता. वहां पर द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज सेपरेटेरिज्म अभी भी, मतलब अभी I'm telling about this. If your office is in this area, then it is mandatory that you should know French. And if you are in the English dominating areas, तो यहाँ पर आपको जो है you are supposed to be expert in English. This is because they are facing this problem because of the two different languages which is spoken over there.
As I had already told you this thing, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. This one, Czechoslovakia has been divided into Czech and Slovakia. Yugoslavia has been divided into 6 different countries. पाकिस्तान के अंदर अलग अलग तरीके के हैं. कनाडा के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, even though it is said that this is a single country, but then बीच में जो आपकी डोमिनेशन, उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आउटसाइडर होता है ना, he or she doesn't know what is there, and there is always a conflict between these two. But how has India remained? ये है आपका what was the major reason for the breakup of erstwhile USSR. erstwhile मतलब जिसको पहले हम USSR कहते थे, एंड अभी जो है उसको हम रशिया बोलते हैं. This was because, as I said, after the Second World War, many of the countries had joined USSR and they had signed a pact called Warsaw Pact. ठीक है. नाउ इसका मतलब क्या है कि जो आपका यूएसएसआर है, just one second, उसमें जो भी आपके डेवलपमेंट, एंड दैट वाज बिकॉज द ईस्ट वाज नॉट एबल टू compete with the west. This is the eastern area and this is the western area. During after the Second World War, it was seen that western area जो है that was more developed than east. So they wanted that there should be something, लेकिन at the same time they did not want to go for the capitalism. Capitalism का मतलब होता है जहां आप इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हो, प्राइवेटाइज कर देते हो, and with that revenue you are able to fulfill the governance. Whereas आपका सोशलिज्म के अंदर जो है आपका बेसिकली आता है जहां आप रिच एंड पुअर के बीच के डिफरेंसेस के लिए जो इंडस्ट्रीज है उनको गवर्नमेंट ओन करती है. तो those countries which supported socialism they were under Warsaw and those who supported capitalism were under NATO. अभी जो आपका रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो इसी की वजह से तो चल रहा है, इसी की वजह से तो चल रहा है. They want to be part of this, लेकिन then they are not allowed. And Ukraine is very nearby to Russia. Then what happened is रशिया के अंडर बहुत सारी कंट्रीज आ गई जिनको लगा कि रशियन गवर्नेंस जो है, क्योंकि उस वक्त में अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का सोवियत यूनियन वाला आएगा अब याद हो, तो उस वक्त में रशिया ने खुद को डेवलप कर लिया था. दे वर एट पार विथ यूएस. बहुत सारे लोगों को लगा कि रशिया विल सपोर्ट देम, लेकिन हुआ क्या, रशिया मॉस्को के अंदर द डेवलपमेंट्स वर देयर, but the same development could not be seen in other countries which were supporting Russia. जो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे वहां पर वो चीज नहीं देखी गई. एंड दिस यू हैव इन अ डिटेल इन योर नेक्स्ट ईयर, मतलब कि सिलेबस में ही है, स्टार्टिंग में ही है आपका. तो देयर वर मेनी कंट्रीज जो देख रहे थे कि उनके रिसोर्सेज तो रशिया यूज करती है लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, उनका जो उनकी जो कंट्री है वो डेवलप नहीं हो रहा, उनके एरियाज के अंदर देयर वाज नो डेवलपमेंट. एंड दिस जो है मतलब कि व्हेन दे सॉ दैट, उन्होंने खुद को जो है डिसइंटीग्रेट कर दिया. एंड अल्टीमेटली व्हेन गोर्बाचोव वाज देयर इन एज अ मतलब की प्रेसिडेंट, तो उस वक्त में रशिया वाज डिसइंटीग्रेटेड, यूएसएसआर से वो रशिया बन गया. दिस वॉज बिकॉज जो सेंट्रल अथॉरिटी थी जिसको हम रशिया बोलते हैं, यूएसएसआर बोलते हैं, दैट डिड नॉट सपोर्ट द लोकल यूनिट्स. ये हम वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं. नाउ हमने कैसे खुद किया, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्टोरी. मैं आपको ऑलरेडी स्टोरी बता चुकी हूँ दैट व्हेन वी वर एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जब हम भारत थे, इंडिया थे, व्हेन वी वर अंडर ब्रिटिश राज, उस वक्त में we used to be under the same roof
कल्चरल डिफरेंसेस थे, लेकिन ब्रिटिश वॉज नॉट दैट मच सपोर्टिव टू अस. बट आफ्टर दैट वी डिवाइज्ड सर्टेन प्लान्स. जैसे पहले आपका आंध्रा में, आंध्रा जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से पहले ही अलग हो गया था. एंड बाकी जो आपके स्टेट्स थे, जो 14 स्टेट्स आपके फॉर्म हुए थे, दैट वाज आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. If you look into West Indies, a very poor, you can say, country in terms of economy. मतलब वहां पर कहा जाता है कि इकोनॉमी इज वेरी वेरी पुअर. अभी भी जो वहां पर जो हमारे पास में जो आपके ये आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, दे से दैट दे आर पुअरली पेड. दे आर नॉट पेड फॉर द, you know, if they have to travel, they are not paid. The Federation of West Indies was founded in 1958. It had a weak central authority and each unit's economy was self-sufficient. The characteristics combined with political struggle among the units resulted in the Federation's formal disintegration in 1962. अगर आप वेस्ट इंडीज का पूरा इफ यू रीड, यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइलैंड्स, जिसके अंदर हमारा सबसे जो मतलब कि फेमस हम लोग कहते हैं कैरिबियन. लेटर इन 73, अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रेटी ऑफ चिकुरंगमास, द इंडिपेंडेंट आइलैंड्स फॉर्म कंबाइंड पावर्स इन फॉर्म ऑफ कॉमन कंट्री. मतलब एक उन्होंने खुद को एक कंट्री बनाया, एक लेजिस्लेचर, एक सुप्रीम कोर्ट, एक करेंसी, एंड जिसको हम बोलते हैं कैरिबियन कम्युनिटी. Even it has a common executive which is comprised of heads of government of member countries. यानी कि जो कंट्रीज वेस्ट इंडीज के अंडर है, उन सबके अपने अपने इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट है वो भी है. Thus, the units cannot coexist as a single country, nor can they coexist independently. मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर कॉमन. मतलब they may be belonging to one island country, but they may be even in. अब हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर. एंड इफ द पर्सन चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो देन ही हैज टू अपने उस पूरे उसको लीव करना पड़ता है. जैसे अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज वंस द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, बट नाउ ही इज ओनली लुकिंग आफ्टर द यूनिट, द यूनियन. तो दोनों को नहीं देख सकता वो, वहां पर वो दोनों को देखते हैं. और इसी वजह से क्या है कि सर्टेन प्रॉब्लम्स आते हैं. मतलब इवन दो वेस्ट इंडीज जो है इट इज डिवाइडेड, उसके अंदर आपके मेंबर कंट्रीज है, और हर कंट्री मतलब कि टोटल हम उनको जो है वेस्ट इंडीज बोलते हैं, लेकिन जो अलग अलग कंट्रीज है उनके हेड यूनियन वाले भी, यूनियन के भी हेड है और उस कंट्री के भी हेड है, जिसकी वजह से देयर आर प्रॉब्लम्स. So now comes what is the definition of federalism. As we have done in 10th standard already, means jahan the power is divided. जो ओवरऑल गवर्नेंस पावर है उसको डिवाइड किया गया है कि जो पूरे घर को यानी कि पूरी कंट्री की देखभाल करेगा उसके पास ज्यादा पावर्स होंगे, एंड जो अपने अपने कमरे को यानी कि अपने अपने स्टेट्स को करेगा उसके पास उस कमरे या उस स्टेट से रिलेटेड पावर्स. The mode of political organization that unites separate states or other polities within an overacting political system to maintain its own integrity. Or it has been different in different situations. It is an institutional mechanism. मतलब इसको सेट किया. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मतलब इट हैज बीन डेलिबरेटली सेट अप टू अकोमोडेट टू सेट्स. जैसे मैंने बोला पूरे भारत के लिए यूनियन गवर्नमेंट इज देयर. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज एरियाज जो पूरे इंडिया के लिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेंसी,
एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे फॉरेन पॉलिसीज, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, वेयर इज अपने अपने स्टेट्स के अंदर वी आर हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, अपने अपने एरियाज में वो इंडिपेंडेंट. इन सम कंट्रीज, ये 1 मार्कर क्वेश्चन था, they have two citizenship. In US you have dual citizenship. If you belong to one state, आप वहां के भी हो और आप यूएस के भी हो. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. We are citizens of only India. हम चाहे हमारे गवर्नमेंट दो है, लेकिन हम सिटीजन्स एक ही कंट्री के. We don't have the dual citizenship. ये पेपर में आता है कि which is one of the features that India doesn't. Like in US you will be having two different. If you are belonging to one state, आप उसके हो, and आप US के भी. The people likewise have two sets of identities and loyalties. That is, हम अब जैसे if I'm staying in UP, I'm also the resident of UP, but I'm a resident of India. If you're staying in Delhi, the same. If you're staying in Chhattisgarh, same. Each level of the polity मतलब जो आपका level है of the government has distinct powers and has a separate system of government. और इसको हम बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है. देयर इज एन इंट्रिकेट डिटेल्ड प्रोग्राम कि कौन से एरियाज पे कौन मतलब कि लॉ बना सकता है, एंड इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, कब इन लॉज को हम चेंज कर सकते हैं, कब हम स्टेट को ओवर रूल कर सकते हैं. ईच एंड एवरी वर्ड इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. There are some subjects like defense, currency, as I said, हमारा जो what you call foreign policy, communication. ये ऐसा है, आप दिल्ली में रहते हो या फिर आप पंजाब में रहते हो, the same thing goes. Whereas regional और local matters जो है वो state government के हैं. Example, हर स्टेट का आपका अभी ये जो अब हम लोग बहुत ये सारी चीजें बहुत सारा इंपॉर्टेंट आएगा इन द लेटेस्ट स्टेजेस. Now, if you are staying in say any state, पंजाब में रहते हो, तो पंजाब का अपना एक ट्रेड की पॉलिसी है. They have their own industrial policies. They have their own irrigational policies. तो उसको जो है स्टेट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया. एंड यस, वी ऑल्सो हैव वन मोर लिस्ट जो कॉन्कुरेंट बोला जाता है, जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों ही जो है अपने अपने रूल्स बनाती हैं. And if there is any conflict, then they have to go to the judiciary. It has the power to interpret between government and states about the division of powers. What factors help in smooth functioning of federalism? मतलब कैसे हम उस चीज को हम फंक्शन कर सकते हैं. When there is, जैसे हमारे यहाँ पर सेंटर टू स्टेट रिलेशनशिप, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक सेपरेशन, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, कोऑपरेशन है, तब हम जो है डुअल से उसको चला सकते हैं. मान लो सेंटर जो है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, इन इंडिया ऑल्सो इट हैपन्स, बट इफ सेंटर इज मोर डोमिनेंट, it doesn't want to share its revenue, it doesn't want to share its power with the state, then definitely there would be conflict. And हमारे यहाँ पर भी ऐसे conflicts कई बार होते हैं. Additionally, the political parties influence how a constitution operates. If a single unit, state, language, group or philosophy begins to dominate the federation, it may breed resentment among. भाई अगर सेंटर के अंदर जो है वही सारे में आ जाए और वो डोमिनेंट हो जाए, there might be. These circumstances may result in aggrieved unit requesting secession or even in civil war. For example, in Sri Lanka. For example, in Sri Lanka. अब श्रीलंका के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी? If you remember class 10 power sharing, you will remember. वहां प्रॉब्लम क्या थी कि जो सेंटर था, सबसे पहले तो दे हैड डिवाइडेड द कंट्री इनटू 2 डिफरेंट एरियाज. अगर आप देखो श्रीलंका का जो मैप है,
अगर आप उसको देखते हो तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज डोमिनेंट एंड समवेयर कुछ एरियाज ये वाले डोमिनेंट है। तो यहाँ पर क्या है, दो तरीके के लोग रहते हैं। वन इज द सिंहाला, द वन ओरिजिनली हु बिलोंग टू श्रीलंका, सिलोन, and second one is the Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. तो ये श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स वो है जिनके फोर फादर्स वहां सेटल हो गए थे एंड देन आपस में मैरिज वगैरह हुआ एंड दे सेटल्ड डाउन। अब सिंहला जो है इट इज डोमिनेंट ओवर देयर। जो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि भाई इफ दे आर डोमिनेंट, वो डोमिनेंट है, तो जितने भी यूनियन, इवन दो द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड, लेकिन उसके मतलब उसमें वहां पर आपकी फेडरलिज्म है, लेकिन देन व्हाट प्रॉब्लम इज देयर कि ओनली ऑल द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू सिंहला इज मेड, और दिस हैज रिजल्टेड इन सिविल वॉर। तो अगर ऐसा रहेगा तो सिविल वॉर होने की पूरी पूरी संभावना है। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, व्हेन द कॉमन पीपल स्टार्ट रिजॉल्व, मतलब कि उसका नाम क्या, रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, व्हेन देयर इज वायलेंस जिसको गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है। छोटे मोटे हर जगह होता है, इवन इन इंडिया वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड दैट इज बिकॉज डोमिनेंटली वो जो है, डोमिनेंटली दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीजन। बट स्टिल, to some extent, when these things come in front of the government, they are able to resolve it. और अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली कंट्री डिवीजन होती जाएगी एंड मे बी वो सेपरेट हो जाए। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि कंट्री डिवाइडेड है लेकिन सेपरेटेड नहीं है। अब वो जो कनाडा के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट का मतलब क्या है, दे वांट अ कंप्लीट सेपरेट व्हाट वी कॉल एज स्टेट। मतलब वो इंडिया के अंदर ही नहीं रहना चाहते, दे वांट अ कंप्लीट सेपरेट स्टेट कॉल्ड खालिस्तान। जो अभी रिसेंटली देयर वाज, मतलब कि दीस प्रॉब्लम्स आर हैव क्रॉप्ड अप इन कनाडा, दिस इज देयर। तो इफ देयर वॉइस इज नॉट हर्ड तो सेपरेटिज्म इज पॉसिबल, अदरवाइज bit division will be there. Now, why federalism failed in Nigeria? Nigeria serves as an instructive case in point where a federal government has failed to produce a stable government. Northern and southern Nigeria were two distinct British possessions till 1914. अब उनके लीडर्स ने जो है, दे क्रिएटेड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बदान कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, और इसमें थे आपके तीन ग्रुप्स। योरोबा, ये पेपर में आया हुआ है क्लास 11, योरोबा, इबो एंड हौसा फुलानी। मतलब एक वेस्टर्न की तरफ था, एक ईस्ट की तरफ था और एक नॉर्थ की तरफ था। their desire to expand their power into other regions जो है, that went into warfare, और फिर वहां मिलिट्री को एस्टैब्लिश किया गया। अकॉर्डिंग टू द 60 कॉन्स्टिट्यूशन 1960 में जो बना था, द नाइजीरियन पुलिस वर जॉइंटली एडमिनिस्टर्ड बाय फेडरल एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमारे यहाँ का आप पढ़ोगे, आई थिंक यू हैव आल्सो डन इट इन सम ऑफ द स्टूडेंट्स, no state was permitted to have a civil police force under 79। हमारे यहाँ पर there is something different. Though Nigeria regained democracy in 1999, religious division and dispute over who will manage revenue जो है वो लड़ाई रहती रही। लोकल एथनिक ग्रुप जो है वो अपोज कर रहे थे। Thus it exemplifies the blending of religious, ethnic and economic division among groups. In our country also, this is a very disputed, or you can say a contentious topic. हमारे यहाँ पर जो पुलिस है, that has been in dual hands, और वो बड़ा ही controversy होता है। When you will read that particular area, you will find out.
जो हमारे सेंट्रल पुलिस है, मीन्स दोज आर द टॉप, आईपीएस आईएएस जो उसमें आते हैं, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दैट, दे आर द हेड। वेयर जब आप बोलते हो इंस्पेक्टर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, दे आर ऑल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट जिन पुलिस को रिक्रूट करती है, दे आर आंसरेबल टू देयर स्टेट्स, पर जो सेंटर से आते हैं दे आर नॉट। तो कई बार इसकी वजह से देर आर डिस्प्यूट्स, बट दीज डिस्प्यूट्स हैव नेवर रिजल्टेड इन वॉरफेयर। तो नाउ कम्स कि व्हाट, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन structure the division of powers between state and center? As I had said, इंडिया के अंदर जो है, मतलब इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन इन मतलब की कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म, उसमें ही आपके जो है 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट आर इज मतलब की मेंशन, यानी कि यूनियन एंड स्टेट। एंड ऑल दोज एरियाज वेयर यूनियन शुड बी देयर, स्टेट शुड बी देयर, वो भी मेंशनड है। एंड लोकल गवर्नमेंट भी मेंशनड है, बट लोकल गवर्नमेंट को एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दिया गया था, जो हम इससे पहले वाले चैप्टर में कर चुके थे दिन बच्चों, मतलब कि आप लोगों ने। तो इट वाज नॉट गिवन एज अ फॉर्मल, लेकिन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से हमने उसको एक फॉर्मल रूप दे दिया था। लोकल गवर्नमेंट पहले एस्टैब्लिश थे अंडर यूनियन गवर्नमेंट, सॉरी अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन दे वर नॉट सेपरेट। स्टेट ही अपने छोटे छोटे यूनिट्स को लोकल लेवल पर यूज करेगी। लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल अलग है, उसके मतलब की प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके जो हाउ इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड वो अलग है, उनके इलेक्शंस अलग हैं। दैट वाज ओनली आफ्टर द अमेंडमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन of India does not even mention the word federation. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड नहीं है, उसमें है इंडिया, भारत इज अ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट मेंशंस मतलब कि हम जो है वो है स्टेट्स के, लेकिन जो रिलेशनशिप उसने अलग अलग दिया है ना, सेंटर ऐसा करेगी, स्टेट ऐसा करेगी, उससे हम जो है वी टेक इट एज दैट फेडरेशन जो है दैट इज देयर। इंडिया इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जो मैंने आपको पहला बताया, जो आजकल देयर इज अ कंट्रोवर्सी आल्सो गोइंग विद मतलब कि इसके नेम के पीछे इंडिया, इट इज क्लियरली मेंशन दैट इज भारत, मतलब आप उसको इंडिया भी कहते हो, भारत भी कहते हो, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि सारे स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। And the states and the territories thereof shall be specified as in the first schedule. मतलब किस एरिया को हम स्टेट कहते हैं, उस स्टेट के अंदर कौन कौन सी टेरिटरीज आएंगी, ये हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। एंड प्लीज दिस इज योर 1 marker question which you can expect. Part 11 of Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative, executive power between Union and States of India. और इससे हमें पता लगता है that India is a federal kind of government. Word federal जो है वो कहीं mention नहीं है हमारे यहाँ, but the powers are mentioned. The major what led the Constituent Assembly to turn federalism for the Indian Union? मैं आपको बहुत पहले ही बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि पहले जो हमारा मतलब कि जो कंट्री था दैट वाज डिवाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, दो वी वर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ द स्टेटहुड, लेकिन वी वर नॉट यूनाइटेड बाय टर्म्स ऑफ अदर एरियाज। और ये चीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, दे हैड रियलाइज्ड कि इफ द गवर्नमेंट हैज टू बी स्मूथ, there should be divided between provinces and central governments. Following India's partition, the Constituent Assembly resolved to create a government based on the concepts of unity and collaboration between center and state, and also giving them autonomous powers.
ये हमारा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, बहुत इम्पोर्टेंट। ये हम लोगों ने पहले से सोच रखा था, बट हाउ टू गिव वाज वन ऑफ द एरियाज। एंड दूसरी बात क्या था कि सम ऑफ द लीडर्स वर नॉट इन, initially they were not in support of giving federal structure. उनको लगा था कि फेडरल स्ट्रक्चर वुड फर्दर डिवाइड द कंट्री। नाउ एज आई सेड देयर आर टू सेट्स, टू टीयर्स। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो स्तर थे, सेंटर एंड स्टेट। बोथ ऑफ दीज हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड आइडेंटिफाइड एरियाज, यानी कि इनके जुरिस्डिक्शंस जो है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द एरिया वेयर दे हैव द पावर टू मेक लॉ, amend the law, make appropriate legislation, वो प्रॉपर लिखा हुआ है। एंड इफ there is any dispute about which powers come under control of union, which under state, आप उसको जो है जुडिशरी से बोलकर रिजॉल्व कर सकते हो। इट हैज क्लियरली डिमार्केटेड द सब्जेक्ट्स, यूनियन का कौन सा रहेगा। नाउ हमारे एक मतलब कि कंट्री में एक बहुत अलग फीचर ये है कि यूनियन हैज मोर पावर्स देन स्टेट्स। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। One of the important aspects of this division is that economic and financial powers are centralized. वो क्यों, क्यों इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स आपके सेंट्रलाइज्ड है, नॉट डिसेंट्रलाइज्ड? मतलब व्हाई दे हैव नॉट बीन गिवन टू स्टेट्स? क्योंकि पूरे भारत को अगर आपने डेवलप करना है तो देन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। The states, on the other hand, have immense responsibility but meager revenue sources. Taxes आपके जो आते हैं, आप अगर जीएसटी टैक्स वगैरह को पढ़ते हो, और if you are having economics, you will come to know that there are certain taxes, some certain revenues which only we give to the union. It is not given to the state. IT हमारा जो है वो सेंटर के अंदर आता है। क्यों आता है? जब हम स्टेट में रहते हैं तो हम उसको क्यों नहीं देते हैं? बट हम अगर हम और दूसरी तरीके के देखते हैं तो दे आर प्रपोज टू आवर ओन स्टेट्स। और even though after the introduction of what we call as GST, one nation one मतलब कि टैक्स बोला गया है, still there are some areas जहां आपके revenues differ करते हैं। and that is why if you go to UP, if you go to हरियाणा, if you go to पंजाब, आपको पेट्रोल के जो प्राइसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। द यूनियन, ये आपका बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है, which would be the last concept of today. The union consists of 100 subjects, one marker question. ये वाला जो है, this is your one marker question. And state has 61. आपकी बुक में पूरी लिस्ट बनी है। कॉन्कुरेंट मतलब दोनों उसमें बना सकते हैं, लेकिन if there is any मतलब कि dispute, then the law which is made by union should be taken into account. हमारे यूनियन, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन पर यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं। अगले साल जब आप 12th स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद व्हेन यू विल बी अप्लाइंग फॉर योर CUET, तो आपके पास दो तरीके की यूनिवर्सिटीज होंगी, वन होंगी सेंटर और एक होंगी स्टेट। तो आप सब स्टेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। if you are belonging to Uttar Pradesh and you are having the domicile of that, domicile मतलब आपका वहां का what you call proof है, you are from the same state, you are from the state, मतलब आपने पढ़ाई भी वहीं की है, आप वहां की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। or else you have to only go for the central universities. on the other hand, देर आर सम जो आपको अलाउ करते हैं, तो ऐसे एजुकेशन, पुलिस, अडॉप्शन, मैरिज, ऐसे कुछ एरियाज हैं जो कॉन्कुरेंट के अंदर आते हैं। बट इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, देन द सब्जेक्ट सॉरी द रूल, द लेजिस्लेचर मेड बाय सेंटर जो है दैट प्रिवेल्स। एंड देन देर आर मेनी सब्जेक्ट्स जो कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था,
The reason, at that particular moment when India was independent, उस वक्त में there were not necessary. It is said that Gandhi ji had said कि आज से 100 साल बाद machines will be working and humans will be sitting. He did not give that machine any name. उन्होंने उन मशीनों को कोई नाम नहीं दिया था. But it is said that it was, मतलब हम लोग अगर indirectly उसको देखते हैं तो that relates to computers. This was because he was against the machine made goods. तो ऐसे कई हमारे एरियाज थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त नहीं थे. कंप्यूटर्स वर नॉट पार्ट ऑफ एनी वन. आज आईटी इज पार्ट. तो उन सब्जेक्ट्स को जो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे सामने आ गए, लाइक आईटी, साइबर, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड दैट यूनियन विल बी मेकिंग द लिस्ट. हमारे जो साइबर लॉज होते हैं दे आर ऑल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द स्टेट हैज टू फॉलो. और उनको हम बोलते हैं रेसिडुअरी लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, यानी कि बचे हुए. Thus, if we look into the constitution, though there was no clear cut instruction or policy कि India is going to be federal, लेकिन उन्होंने जो subjects को divide करके एक तरफ से बता दिया था that India will be following a federal structure of government. Unlike other countries, we are not having the dual citizenship. We are having a single citizenship because मतलब कि हम ही हैं जिनको different जो मतलब कि government है वो rule करता है. बट हमारा जो सिटीजनशिप है वो एक ही है, दैट इज टू आवर कंट्री. So that's what we talk about introduction to federalism.